صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد کے شہر بخارا میں دو دوست رہتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی بچپن سے تھی، لیکن ان کی عادتیں اور مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ابو یوسف اور دوسرے کا نام جابر تھا۔ وہ دونوں اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر دور دراز علاقوں میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ آج کے دن بھی وہ دونوں اونٹوں پر سوار تھے۔ دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے بصرہ کے دروازے سے باہر نکلے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں دوست بغداد کے بڑے مشہور سوداگر تھے، جو کاروبار کی غرض سے بصرہ آئے تھے اور اپنا سامان فروخت کر کے اچھا خاصا منافع حاصل کر چکے تھے۔ جب وہ بصرہ پہنچے تھے تو ان کے ساتھ کئی تاجر تھے، لیکن وہ لوگ اپنا سودا بیچ کر دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دو دوستوں کو بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا، لیکن انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو ابو یوسف کی بیوی بیمار تھی اور جابر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے۔ اب واپسی کے سفر پر ان دونوں کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو ان کی زندگی کے رخ کو بدل دینے والا تھا۔ دونوں کا سفر واپسی کی سمت جاری تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ خاصا فاصلہ طے کر لیں، کیونکہ دھوپ میں ریگستان سے گزرنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور صحرا ایسے تپتے جیسے کوئی تندور دہک رہا ہو، اور پھر صحرا میں آندھی اور طوفان کا بھی خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت وہ دونوں برق رفتار سے سفر کر رہے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بصرہ کے گرد و نواح کی بستیوں سے کافی دور جا نکلے تھے۔ اتنے میں ابو یوسف نے آواز دی، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر سکون حاصل کر سکیں۔ یہاں قریب ہی ایک نخلستان موجود ہے، وہیں ہم آرام کریں گے اور سورج کے ڈلتے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیں گے۔ جابر نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ نخلستان پہنچ کر دونوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر دونوں دوست آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ جابر دل میں چھپے لالچ کو دبانے کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا، میرے دوست، تم 5000 درہم کا سامان لائے تھے اور مزید 5000 درہم بھی کما لیے، مگر میں صرف 2000 کا نفع ہی حاصل کر سکا ہوں۔ افسوس، اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا تو شاید زیادہ کما لیتا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ سامان خرید کر بغداد لے جاتے تو بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا۔ ابو یوسف نے جابر کی بات سنی تو نرمی سے کہا، میرے بھائی، خدا کا شکر ادا کرو، تم صرف 1000 درہم کا سامان لائے تھے اور اب تمہارے پاس 3000 درہم موجود ہیں۔ ایسی ناشکری نہ کرو۔ لیکن جابر بار بار اپنے لالچ کا اظہار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کاش میں 3000 درہم کے بجائے 10,000 درہم کا مالک بن کر واپس لوٹتا۔ پھر وہ دونوں درخت کے سائے تلے نیند لینے کے لیے لیٹ گئے۔ ابو یوسف تو کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگا، لیکن جابر سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں اب بھی 10,000 درہم کا خیال گردش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ابو یوسف کے سامان سے اس کی رقم والی تھیلی نکال لی۔ پھر اس کی نگاہ نیند میں ڈوبے ہوئے ابو یوسف کے چہرے پر پڑی، جو ایک مخلص اور وفادار دوست کا چہرہ تھا۔ اس کے دل میں ایک خلیش ابھری، اے بد دیانتی کی طرف مائل دل، یہ تیرا وہی بچپن کا دوست ہے، کیا تو واقعی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ فوراً اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، نہیں، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس نے تھیلی واپس اس کی جگہ رکھ دی۔ اتنے میں جابر نے ابو یوسف کے اونٹ کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو جگایا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب دونوں کو مجبوراً ایک ہی اونٹ پر سفر طے کرنا تھا۔ پھر شمال کی سمت سے ہولے ہولے ہوا چلنا شروع ہوئی، جیسے کسی آتے ہوئے طوفان کی خبر دے رہی ہو۔ جابر بولا، ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی ہمیں پکڑ لے۔ ابو یوسف نے بے اختیار جواب دیا، میرے بھائی جابر، کیا تم عقل سے عاری ہو چکے ہو؟ آندھی کے سامنے ہم کھلے صحرا میں کیسے ٹھہر سکیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ طوفان تھمنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہی سفر کو دوبارہ شروع کریں۔ لیکن جابر اپنی ضد پر قائم رہا کہ ابھی نکلنا چاہیے، دیر کرنا نقصان دہ ہوگا۔ آخر کار ابو یوسف نے اس کی بات مان لی۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک ایسی تیز آندھی چلی کہ خدا کی پناہ،
दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रेत का तूफान बेकाबू था। जाबर ने देखा कि तूफान के बायस अब्बू यूसुफ के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो सख्त मुश्किल में था। ये मंजर देखकर जाबर के मुर्दा ज़मीर ने सर उठाया और दिल में सरगोशी की, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये सोचकर वो दबे पांव खिसक गया और ऊंट को भगा दिया। वो खुद ऊंट की ओट लेते हुए नकलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर उसकी आंखों के सामने अपना माल ही नहीं बल्कि अब्बू यूसुफ का सामान भी चमकने लगा। उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये तूफान अब्बू यूसुफ को निगल गया तो उसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये लालच उसके ज़मीर पर हावी हो गया और उसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। अब्बू यूसुफ जो अपने दोस्त पर मुकम्मल यकीन करता था, वो मदद के लिए उसे पुकारने लगा, मगर जाबर ने पलटकर भी ना देखा। फिर एक बुलंद आवाज़ गूंजी, जाबर मुझे बचा लो। लेकिन हवा और रेत की सनसनाहट के सिवा कुछ बाकी ना रहा और अब्बू यूसुफ रेत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। जाबर ने तसल्ली के लिए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, लेकिन अब्बू यूसुफ कहीं नजर न आया। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार बगदाद पहुंच गया। जब लोगों ने उससे अब्बू यूसुफ के बारे में दरियाफ्त किया तो जाबर ने रोते हुए कहा कि अब्बू यूसुफ तूफान में कहीं खो गया है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ ना कर सका। सब उसकी नेकी का मातम करते रह गए। वक्त गुजरता गया और जाबर की तिजारत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती गई। अब उसका शुमार बगदाद के अमीर तरीन ताजरों में होने लगा, लेकिन उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। उसने कभी भी अब्बू यूसुफ की बीवी और बच्चों की खबर तक ना ली, ना ही कभी अपने गुनाह पर नज़ामत का इजहार किया। मालो दौलत की हवस ने उसे बेचैन कर दिया था। वो दिन रात कारोबार की दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफ़र करता। एक शाम वो मुख्तलिफ इक़साम का कीमती सामान खरीद कर शाम की तरफ रवाना हुआ। उसके काफिले में और भी बहुत से ताजर शामिल थे और काफिला इतना वसी था कि उसके रवाना होने के बाद बगदाद के बाजार खाली हो गए। उसी दौरान एक रात बगदाद में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दीवानों की तरह लड़खड़ाता हुआ वीरान गलियों और बाजारों से गुजरता जा रहा था। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका और दस्तक देने लगा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है बाहर? जब कोई जवाब ना मिला तो दरवाजा खोल दिया गया। बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, अब्बू यूसुफ, क्या ये तुम हो अब्बू यूसुफ? उस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। और फिर दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ देर के बाद जब जज्बात को थोड़ा सा संभाला मिला तो अब्बू यूसुफ की बीवी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? जाबर ने तो बताया था कि तुम्हें। अब्बू यूसुफ ने गम से लबरेज आवाज में कहा, क्या बताऊं, सिर्फ इतना समझ लो कि दोस्त बददयानत निकला। वो मुझे तूफान में छोड़कर चला गया था, मगर खुदा के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और उन लोगों ने मुझे बसरा पहुंचाया। वहां मैंने कुछ दिन क़याम किया। जब मेरी तबीयत संभली तो वापस बगदाद लौट आया। जब उसकी बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना शख्स इसी शहर में रहता है। जब वो वापस आएगा तो उससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर अब्बू यूसुफ ने नरमी से कहा, उसने बददयानती की, लेकिन मैं उससे कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा ये बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया के सामने रुसवा हो जाए। मुझे अपने अल्लाह की अदालत पर यकीन है, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। उधर जाबर अपने कीमती मालो मता से बड़े काफिले के साथ सहरा अबूर कर रहा था। काफिला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से लदा हुआ था। मुल्क शाम पहुंचकर जाबर ने माल मुनाफे के साथ फरोख्त किया। उसकी लालच ने उसे बाज न आने दिया। उसने इरादा किया कि वो वापस ना जाए, बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताकि मजीद मुनाफा कमा सके। चुनाचे वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही जाबर की शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। उसका नाम बड़े ताजरों और सौदागरों की जुबान पर आम होने लगा। अब उसने बगदाद वापसी का फैसला किया और ऐसी अशिया खरीदी जिनकी बगदाद में किल्लत थी। उसका सामान अब 5 के बजाय 30 ऊंटों पर लदा हुआ था, मगर उसे मालूम नहीं था कि अब उसकी वापसी का सफर उसके अंजाम का पैगाम लेकर आ रहा है। उधर अब्बू यूसुफ ने इंतकाम और नफरत को दिल में जगह न दी।
बल्कि सब्र और तवक्कल से काम लिया। उसने जो कुछ घर में था बेचकर छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने उसकी नेक नियति और दयानतदारी को बरकत दी और उसके कारोबार को तरक्की अता हुई। वो जल्द ही दोबारा इस काबिल हो गया कि दूसरे शहरों में जाकर माल की खरीदो फरोख्त कर सके। अब उसका बददयानत दोस्त जाबिर मिस्र से वापसी के सफर पर था। काफिला मंजिलें तय करता एक नखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां उसने रात गुजारने का फैसला किया। दिन भर की तपश और सफर की थकन के बाद सब आराम की हालत में चले गए, मगर जाबर को उस रात कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन उसने इस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात के वक्त जब काफिले के तमाम अफराद ख्वाबों की दुनिया में गुम थे, एक गिरोह ने काफिले पर हमला कर दिया। ये लुटेरे सहरा के रास्तों के माहिर और बेरहम थे। उनका सरदार सहरा में दहशत की अलामत समझा जाता था। लुटेरों ने काफिले पर हल्ला बोल दिया और जाबर और उसके साथियों को संभलने का मौका तक न मिला। जब हमला खत्म हुआ तो जाबर और उसके साथी जमीन पर हैरानी और परेशानी की हालत में पड़े थे। वो सब जख्मी थे। काफिले का सारा सामान लूट लिया गया था, यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। जाबिर, जो अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहा था, अब खुद बेयारो मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत की गिर्द में दबा पड़ा था। जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था, उसके जहन में अबू यूसुफ की यादें ताज़ा हो गई थी। उसे अबू यूसुफ की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई, जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो बिखरे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। ना ही उसके पास उसका माल बचा था और ना ही अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो चुका था और साथ ही उसके पास दूसरे ताजरों का भी माल जा चुका था। अब वो कर्ज की चक्की में फंस चुका था। उसने अपने काफिले के साथियों से कहा, मैं इस हालत में बगदाद वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं मुल्क शाम में कयाम करूंगा। चुनाचे उसने सहरा का अबूर करना शुरू किया और कई दिनों की मुशक्कत के बाद आखिरकार शाम पहुंच गया। उसकी हालत अब मजीद बदतर हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब वो भीख मांगने की हालत में आ चुका था। उसका गुरूर और लालच उसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो होशो हवास से चूक पड़ता। एक दिन उसने खुद से कहा, जाबिर, जाओ और अपने दोस्त अबू यूसुफ की बीवी को सब कुछ सच सच बता दो। उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन अबू यूसुफ की बीवी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो दमिश्क शहर के बाजार में खड़ा था और भीख मांग रहा था कि अचानक उसे कुछ हजूम और शोरगुल नजर आया। एक बड़ा ताजर जो बड़ी शानो शौकत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में सदका तकसीम कर रहा था। जाबर भी उस ताजर की तरफ बढ़ा ताकि वो उससे भीख की दरख्वास्त कर सके, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी वो हैरत ज़दा हो गया। उसकी शर्मिंदा निगाहों ने उसे फौरन पहचान लिया। ये अबू यूसुफ था, वही दोस्त जिसे जाबिर ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। जाबिर ने शर्म से नजरें झुका ली और एक चादर से अपना चेहरा छुपाने लगा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अबू यूसुफ उसे पहचाने बगैर गुजर जाए, लेकिन वो एक मुखलिस और नेकदिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से उसके पास आया और जाबिर की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर अबू यूसुफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने ना कोई शिकायत की, ना कोई गिला किया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। जाबिर शर्मिंदगी के मारे उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। अबू यूसुफ ने अपने दोस्त को सहारा देकर उठाया और उसे गले से लगा लिया। जब दोनों बगदाद पहुंचे तो अबू यूसुफ ने अपने दोस्त की मदद की ताकि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सके। उसने जाबिर को दिल से माफ़ कर दिया क्योंकि उसके दिल में रहम था और वो समझता था कि लालच और हसद की आग में जलने वाला शख्स कभी भी जिंदगी और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। जाबिर को भी अपने किए पर बहुत अफसोस था। ये वाकया उसकी जिंदगी बदल गया और इसके बाद वो एक ईमानदार और मेहनती शख्स बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसे ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देता है जो आखिरकार उसी की बर्बादी का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ एक मुखलिस दोस्त ने बदसलूकी के बावजूद सब्र, बर्दाश्त और माफ़ी को अपना शिआर बनाया। उसने इंतकाम के बजाय अपने रब पर भरोसा किया और ईमानदारी से मेहनत की, जिसका सिला उसे इज्जत, खुशहाली और सुकून की सूरत में मिला। उसने अपना सब कुछ खोने के बावजूद अपनी दोस्ती की लाज रखी और अपने दोस्त को कहीं पर भी बदनाम नहीं किया।
इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि जो इंसान मुखलिस होता है और दयानतदारी से काम लेता है, उसका सब कुछ बर्बाद भी हो जाए, उसे अल्लाह फिर से अता कर देता है। माफ़ी देना कमज़ोरी नहीं बल्कि अज़मत की अलामत है, और जो शख्स नदामत के साथ अपनी गलती मानता है वो दोबारा संभल सकता है। इंसान को कभी हालात के धोखे में आकर दूसरों के हकूक़ नहीं छीनने चाहिए, क्योंकि हर अमल का एक दिन हिसाब ज़रूर होता है। सच्चाई, दयानतदारी, सब्र और माफ़ी जैसे औसाफ वो ख़जाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, और यही औसाफ इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।